Hello everyone, I am Saloni, your math teacher, and I am making video behalf of Asha Public School in Kannauj. So today I am going to teach you chapter 7 fraction exercise 25 part 3. Question 1 is fill in each placeholders with the symbol greater than, less than or equals to make the statement true. So first part is 2 upon 5 and 7 upon 8. So if we want to compare these two fractions, first of all we have to make the denominators same. So the LCM of 5 and 8 is 40. So next step will be 2 upon 5. We have to make 5 into 40. So multiply with 8. And here 7 upon 8 multiply by 5. So its value will be 2 is 16 and 5 is 40 and 7 5 is 35 upon 5 is 40. So 40 and 40 denominators are equal. So the numerator which have the greater value will be greater. Its value is 35. So 7 upon 8 will be greater. Next is 3 upon 4 and 2 upon 5. So the LCM of 4 and 5 is 20. So 3 upon 4. If we want to convert it into 20, we have to multiply with 5 and 2 upon 5 को multiply करना पड़ेगा आपको 4 से to make the denominator equals to 20. So next value will be 3 5 is 15 upon 20 and 2 4 is 8 upon 20. So the greater value will be 15 upon 20. So the sign will be open towards 3 upon 4. Next is 17 upon 4 and 13 upon 3. So the LCM of 4 and 3 is 12. So 17 upon 4. We have to multiply it with 3. And 13 upon 3. We have to multiply it with 4. So 17 3 is 51 and 4 3 is 12. Next is 13 4 is 52 and 3 4 is 12. So 52 will be greater. So the value will be greater, which is 13 upon 3. Next is 5 upon 8 and 4 upon 7. So the LCM of 8 and 7 is 56. So 5 upon 8 into 7 into 7. 4 upon 7 into 8. So its value will be 5 7 is 35 upon 56 and 4 8 is 32 upon 56. So the 35 will be greater because 32 is less. So we will put this sign. Next is 4 upon 6 and 6 upon 9. So the LCM of 6 and 9 is 18. So 4 upon 6 into 3 करना पड़ेगा 18 लाने के लिए and here 6 upon 9 into 2 करना पड़ेगा 18 लाने के लिए डिनोमिनेटर में. So 4 3 is 12 upon 18 and 6 2 is 12 upon 18. So both values are equal. So we have to put equals to sign in the box. Next है 13 upon 6 and 11 upon 5. So 13 upon 6 में 6 and 5. The LCM of 6 and 5 is equals to 30. So 13 upon 6 into 5 करेंगे 30 बनाने के लिए डिनोमिनेटर को and 11 upon 5 into 6 करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को 30 बनाने के लिए. तो 13 5 is 65 upon में 30 and 11 6 is 66 upon में 30. So 66 will be greater. So the value will be this. Now on the basis of these questions you have to do GHI yourself. Okay. Next है आपका क्वेश्चन नंबर 2. कंपेयर द फॉलोइंग. सो इनको भी कंपेयर करने के लिए पहले इनको मिक्स
मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 5 टू ज़ 10 एंड 3 13/5 and 4 to the 8 and 3 11/4. Now the LCM of 5 and 4 equals to 20. So 13/5. 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड 11/4 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 करने के लिए. तो 13 4 जा 52/5 को 20 and 11 5 जा 55/4/20. So the value will be greater 55/20. मीन्स आप यहाँ पर ये वाला साइन अब लगा सकते हैं. नेक्स्ट है आपका 3 1/3 and 3 3/10. So we have to first of all convert it into improper fraction. 3 3s are 9 and 1 10/3 and 10 3 30 and 3 33/10. So the LCM of 3 and 10 is 30. So 10/3 3 को 30 में कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड 33/10 30 में कन्वर्ट करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो 10 10s are 100/30 and 33 3s are 99/30. So the value will be greater 100/30 means 3 1/3 is greater. C part 2 1/7 and 1 7/9. So इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं. 7 2 ज़ा 14 and 1 15/7 and 9 1 ज़ा 9 9 and 7 16/9. Now 7 and 9 का एलसीएम लेंगे तो आएगा वो आपका 7 9 ज़ा 63. सो 15/7 7 को 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 16 लाने के लिए एंड 16/9 9 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 63 लाने के लिए. तो 15 9 ज़ा 135/7 9 ज़ा 63 16 7 ज़ा 112 and 9 7 ज़ा 63. So the value is 135 greater. So we will put this sign. Okay, now D, E and F. D, E, F. You will do in homework. Next is arrange the following fractions in an ascending order. Ascending order में इनको convert करने के लिए सबसे पहले हमें 6 9 3 और 12 का LCM लेना होगा. LCM लेने का तरीका यहाँ पे देखिए क्या है. सभी टेबल्स को हम पढ़ेंगे और जिस टेबल जो नंबर इन सभी टेबल में कॉमन आएगा वही हमारा एलसीएम होगा. ठीक है, जैसे मान लीजिए 12 का टेबल है. 12 का टेबल मीन्स 12 जो होता है वो 3 में आता है 6 में आता है 12 में आता है बट 9 में नहीं आता है. तो 12 का टेबल हम पढ़ेंगे 2 times 24 24 भी 9 के टेबल में नहीं आता है 6 में भी आता है 3 में भी आता है. नाउ 12 3 ज़ा 36 9 के टेबल में भी आता है 36. तो अब हमें क्या करना है सभी नंबर्स को 36 में कन्वर्ट करना है. तो 5/6 इसको 36 में कन्वर्ट करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 7/9 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 2/3 को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड 11/12 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अब इसकी वैल्यू देखिए क्या होगी. 5 6 30/36. नेक्स्ट है आपका 7 4 ज़ा 28/36. 12 2 ज़ा 24/36 एंड 11 3 ज़ा 33/36. अब इसे हमें करना है असेंडिंग ऑर्डर में. मीन्स पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा. तो इसमें सबसे छोटा वैल्यू कौन सी है जिसकी वैल्यू सबसे छोटी यहाँ पे दी होगी. मीन्स 24/36 एंड 24/36 इज रिप्रेजेंट फॉर 2/3. सो 2/3 आपका सबसे पहले आएगा. उसका 24 के बाद है 28. सो 7/9 आएगा आपका. इसके बाद है आपका 30/36 मीन्स 5/6 एंड लास्ट है आपका 11/12. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है आपका 4/5 7/10 8/15 1/2.
सो द एलसीएम ऑफ दिस नंबर विल बी 30 बिकॉज 5 के टेबल में भी 30 आता है, 10 के टेबल में भी आता है, 15 के टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में भी आता है। अब हमें इन सभी के डिनोमिनेटर्स को बनाना है 30। सो 4/5 इंटू 6 करेंगे तो ये 30 बन जाएगा। 7/10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8/15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 1/2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी यहाँ पर 4 6 20, 4/30, 21/30, 16/30 एंड 15/30। सो जो इसमें सबसे छोटी वैल्यू है वो है आपकी 15/30 विच रिप्रेजेंट 1/2, सो 1/2। नेक्स्ट है आपका 16/30, इट मीन्स 8/15। उसके बाद आपका 21/30 मीन्स 7/10। द लास्ट वैल्यू इज 4/5। ओके, नेक्स्ट है आपका 1/3, 3/10, 5/6 एंड 2/5. The LCM of 3, 10, 6 and 5 will be equals to 60. No, it's 30 because 10 के टेबल में भी 30 आता है, 3 के टेबल में भी 30 आता है, 6 के टेबल में भी 30 आता है एंड 5 के टेबल में भी 30 आता है। सो अगर हमें इनको 30 बनाना है तो इसको मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3/10 को 30 बनाना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5/6 को 30 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2/5 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो इनकी वैल्यूज हो जाएगी आपकी 10/30, 9/30, 25/30 एंड 12/30। ना इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो सबसे छोटी वैल्यू है 9/30 विच रिप्रेजेंट 3/10, then 10/30 it means 1/3 and 12/30 it means 2/5. The greater value is 5/6. Okay, so now at least one part of this question you have to do yourself in homework. नेक्स्ट है आपका अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन एन असेंडिंग ऑर्डर। इसमें भी सेम आपको वही प्रोसीजर करना है बट ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। इसमें आपको ग्रेटर वैल्यू पहले लिखनी है। तो लेट्स सी द एलसीएम ऑफ 2, 4, 8 एंड 16। तो एलसीएम ऑफ 2, 4, 8 एंड 16 विल बी 16 बिकॉज 16 के टेबल में भी आता है, 8 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है एंड 2 के टेबल में भी आता है। तो 1/2 को 16 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3/4, 4 को 16 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5/8 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड 9/16 में ऑलरेडी 16 है। सो इट्स वैल्यू विल बी 8/16, 3 4 12/16, 10/16 एंड 9/16। तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू है जो है वो है 12। इसमें हम लिखेंगे 3/4। उसके बाद है 10 मीन्स 5/8। उसके बाद है 9 मीन्स 9/16 और उसके बाद है 8 इट मीन्स 1/2। ओके, तो सेम वैसे ही ये भी करना है बट इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर है। इसका बी, सी एंड डी पार्ट आप लोग खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, मैं आपको सभी पार्ट्स दिखा देती हूँ तो करने की पूरी कोशिश कीजिएगा। इसमें और भी पार्ट्स हैं। चलिए ई एंड एफ में आपको खुद से सॉल्व करवा देती हूँ। तो इसमें 9, 12, 3 एंड 15। तो 9, 12, 3 और 15 का एलसीएम क्या होना चाहिए? ओके, here I solve the LCM. So the LCM will be 5 3 are 15, 15 3 are 45, 45 2 are 90 and 90 2 are 180. So 180 के लिए मुझे 5 है, 5/9 को अगर 180 बनाना है तो इसे मुझे 20 से मल्टीप्लाई करना होगा। 3/12 को अगर 180 बनाना है तो इसे मुझे मल्टीप्लाई करना होगा
15 से 1/3 को मल्टीप्लाई करना होगा मुझे। इसमें देख लीजिए 3 को छोड़कर बाकी सारे नंबर 5 to 15 to 30 to 60 से एंड 4/15 में 3 5 से 15 होता है, 15 को छोड़ दीजिए, 3 2 6 6 2 12 से। सो नेक्स्ट वैल्यू विल बी 5 को 20 से मल्टीप्लाई 25 so 100/180, 3 5 से 15/180, 61/80, 60/180 एंड 12 4 से 48/180। क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो इसमें सबसे बड़ी वाली वैल्यू जो है वो सबसे पहले लिखी जाएगी। इट मीन्स 100/180, इट्स रियल वैल्यू इज 5/9, then 60/180 which is equals to 1/3, then 48/180 means 4/15 and the last value is 3/12। नेक्स्ट है आपका 3/8, 1/2, 5/6 and 2/3। so the LCM for 8, 2, 6 and 3 24 because 24 8 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है एंड 3 के टेबल में भी आता है। तो 3/8, 8 को 24 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1/2 को 12 बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5/6, 6 को मल्टीप्लाई करने के लिए 6 को 24 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड 2/3 को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इनकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 9/24, 12/24, 5 4 से 20/24 and 2 8 is 16/24। so the greater value is here 20/24 which means 5/6। इसके बाद आपके 16/24 which is equals to 2/3, then 12/24 it means 1/2 and the last value is 3/8। okay, so here your chapter your exercise finished. Now you have to do assessment 6. असेसमेंट 6 का क्वेश्चन बैग 1 एंड क्वेश्चन बैग 2। जो क्वेश्चन आपके बुक में हो सकते हैं वो आप बुक में करेंगे, अदरवाइज जो क्वेश्चन आपके बुक में नहीं हो सकते हैं उन्हें आप अपने नोटबुक में करके मुझे इवनिंग तक सेंड कर देंगे। ओके, सो थैंक यू एंड गेट रेडी फॉर द टेस्ट बिकॉज इवनिंग तक आपको मुझे सभी बच्चे टेस्ट को सेंड करेंगे मेरे पर्सनल नंबर पे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। Stay at home and be safe.